Now, ever since the CAA entered the poll narrative from a couple of days ago, opposition parties have been left scrambling to come up with a coherent response. A response to counter the impact of the citizenship law electorally. On a day when Home Minister Amit Shah came out all guns blazing to take on all detractors, dismissing their charges as fear-mongering and daring everyone from Kejriwal to Mamta to Rahul Gandhi and Owaisi to prove their allegations, Uddhav Thackeray dragged in Hindutva into the poll pitch. Believe it or not, Uddhav Thackeray, while speaking on CAA, said that the UBT faction's brand of Hindutva was an inclusive one and not one that stirred religious discord between communities. The former Maharashtra Chief Minister said that BJP is indulging in abusive Hindutva, dubbing it Gaumutradhari Hindutva. Interestingly, just a day after accusing the Prime Minister of wearing a Hindutva ka burqa, Uddhav also took the opportunity to seek the support of Muslims. मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो भास्करराव, तुम्ही आणि सगळे तुम्ही त्यांच्या शिवीगाळीने उत्तर देऊ नका. कारण ती आपली संस्कृती नाही, ते आपलं हिंदुत्व नाही, ते भाजपाचं नाचलेलं कुजलेलं भाजपाचं हिंदुत्व आहे, ज्याला मी गोमूत्रधारी हिंदुत्व म्हणतोय. हे गोमूत्रधारी हिंदुत्व आहे. आमच्या हिंदुत्वामध्ये ओव्या आहेत, तुमच्या हिंदुत्वामध्ये शिव्या असतील, तर तुम्हाला लख लाभो, तुमच्या शिव्या तुम्हाला लाभो. होळीमध्ये हुकुमशाहीची होळी करायची आहे, हुकुमशाहीची होळी. आणि रमजानचा सुद्धा पवित्र महिना सुरू होतोय. अनेक ठिकाणी आता हे वंचितचं काय होणार विचारणारे हे मुस्लिम बांधव आहेत. अनेक ठिकाणी मुस्लिम बांधव सोबत आलेले आहेत. तुम्ही सोबत राहा, बाकी काय करायचं काय व्हायचं ते आपण बघून घेऊ. आतापर्यंत म्हणजे खरं मी तुमच्या सगळ्यांची आणि महाराष्ट्राची दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण मीच होतो 2014 साली आणि 19 साली यांना पंतप्रधान करायला मत द्या सांगायला आलो होतो. ही माझीच चूक झाली. तेव्हा मला कळलं नाही की यांचा हिंदुत्वाचा हा बुरखा आहे, हिंदुत्वाचा मुखवटा आहे, आणि त्या मुखवट्याच्या आड यांचा बिभत्स विकृत चेहरा दडलेला आहे, हे आता मला कळलं. Now, earlier today, remember, Home Minister Amit Shah had accused the former Maharashtra CM of doing politics of appeasement for minority votes. He dared Uddhav Thackeray and others from INDI to clarify what really is their stance on the CAA. मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले. क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए. हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए. एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा. अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए. एपीसमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे. All right, joining us on the debate, we have Tuhin Sinha, national spokesperson of the BJP, Ajay Verma, leader of the Congress and leader of the Shiv Sena UBT, Sanjay Gupta. Tuhin Sinha, who would have thought that Uddhav Thackeray of all people is taking a swipe at Hindutva, calling it Gaumutradhari. Gaumutradhari Hindutva is what the BJP practices, he says. Well, good evening, Padmaja. Good evening, everybody. Uddhav Thackeray, like Rahul Gandhi, is a man of zero credibility and an insult to the legacy of Balasaheb Thackeray. In fact, that only, the kind of words which he has used today indicates our decision to part ways with him a few years ago. Now, the point is, if you just go back into his behavior, he's the sort of person who, just before, aligning with the Congress party, had said he will beat Rahul Gandhi with slippers if he dare insult Veer Savarkar again. But the moment they joined hands, Rahul Gandhi kept on insulting Veer Savarkar and he did nothing to stay in power. The kind of words that he has said today clearly shows that he was a mukhota. He never had anything to do with Balasaheb Thackeray, with Balasaheb Thackeray's ideology of Hindutva, and nor does he understand it. Because forget, not relating to it in toto, the kind of words, disparaging words that he has used, which I don't want to use again on your show, clearly shows that he is anti-Hindu. And, secondly, he's fighting an existential crisis, much like Rahul Gandhi is. So probably, I'm not sure whether he's completely stable and in the right senses to be speaking. Let's ask Sanjay Gupta. Sanjay Gupta ji, ऐसा क्या होगा CAA के आने के बाद कि उद्धव जी कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदुत्व का बुरखा ओढ़े हुए हैं,
कि उनका हिंदुत्व जो है गौमूत्र का हिंदुत्व है। ऐसे शब्द तो हमने सुने थे, डीएमके ने एक बार बोला था कि गौमूत्र स्टेट्स के वोट्स हैं। अब उद्धव जी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए पद्मजा जी, सीए 2020 में पास हुआ था और उसको आज कितने दिन हो गए, 5 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और सीए पास क्या हुआ था? सीए पास ये हुआ था कि जो अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमान हैं उनको इस देश से निकाला जाएगा। जो हमेशा से हमारा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम से एजेंडा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान के घुसपैठिए, उनको इस देश से निकाला जाएगा। उसका सीए से कुछ लेना देना नहीं है सर। सीए का बिल्कुल अलग उद्देश्य है कि जो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, जो हिंदू भाई प्रताड़ित किए जाते हैं, जैन भाई प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाए। ये है एजेंडा। इसके लिए किसी ने कभी भी मना नहीं किया, लेकिन ये नहीं था। ये था कि इस देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनको इस देश से बाहर निकाला जाएगा। जो अल्पसंख्यक दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं उनको सिटीजनशिप देने से किसने इनकार किया कभी भी? उसका तो ये लॉ है ही नहीं। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज कि आज अमित शाह बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी वोट बैंक की राजनीति में ऐसे फंस गए हैं कि सीए से भड़क करके वो गौमूत्र, बुरके जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? संजय गुप्ता, आपका वो ऑडियो म्यूट हो गया है। हमने हमेशा सीए को इम्प्लीमेंट करने की बात किया, लेकिन ये सीए इलेक्शन 5 साल तक इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? और 5 साल के बाद आज इसमें इस तरह के चेंजेस क्यों कि जो मुसलमान घुसपैठिए दूसरे देश के नागरिक हैं जो इस देश में घुसे हैं उनको निकालने की तो बात ही नहीं कर रहे। बात सिर्फ उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, जिनकी नागरिकता देने के लिए कभी किसी ने मना ही नहीं किया। अरे सर, मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपसे सिंपली ये पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया, सीए से इतना क्यों भड़क गए कि जा करके गौमूत्र का क्या लेना देना है? सीए से नहीं बढ़ के हैं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, 2020 में पास होने के बाद आज 5 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, और वो भी उसके फार्मूले को चेंज करके 5 साल तक कौन सी गुफा में सोए हुए थे ये? 5 साल तक क्यों नहीं किया इसको इम्प्लीमेंट? ओके, तुहिन सिन्हा, शिवसेना इज नॉट अपसेट विद सीए. In fact, they are saying bring NRC also quickly and throw out all the illegal immigrants. मैं इनको क्या, पद्मजा जी, मैं इनको क्या जवाब दूं? पहले तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि ये उद्धव जी के मित्र हैं या दुश्मन है, क्योंकि सीए जो है, सीए क्या है इनको ये भी नहीं पता है। सीए कभी भी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात नहीं थी। ये उन विस्थापित हिंदुओं को, बुद्धों को, जैन को, क्रिश्चियंस को नागरिकता प्रदान करने की बात की गई है इसमें, जिनको दशकों से प्रताड़ित किया जा रहा था पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में। तो मुझे लगता है कि इनकी तरह ही उद्धव जी भी पूरे मसले को समझ ही नहीं पाए। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, देखिए, पहला एक झलक हमें मिल गया था 2020 में, जब पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी। जिस प्रकार का इंडिफरेंस उद्धव ठाकरे ने दिखाया था, एक हमें झलक मिल गया था कि आज वो हमारी आइडियोलॉजी से कोसों दूर चले गए हैं। लेकिन उसके बाद जब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उनको सजा दी गई। और आज जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, ये साबित हो जाता है, बार बार ये साबित हो जाता है कि हमारा जो है उनसे अलग होने का निर्णय बिल्कुल सही था। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को अपमानित किया है। अजय वर्मा, इज एवरीवन नाउ फोर्स्ड टू चूज देयर ओन वोट बैंक्स? Arvind Kejriwal is saying BJP is making their vote bank through CA. हिंदुओं को ला के बसा रहे हैं ताकि 2029 में ये सारे हिंदू बीजेपी वोटर बन जाए। पर कांग्रेस भी तो कन्वर्सली अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग कर रही है सीए का डर दिखा के। नहीं, पद्मजा जोशी जी, आप तो देखिए बहुत अच्छी एंकर हैं और मुद्दा बहुत अच्छी तरह समझती हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो गॉडसे की विचारधारा के लोग और आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य कुछ चर्चा कर रहे थे बैठकर इस देश में, उनकी भाषा शैली देखिए। बात आपने पूछी थी पूरब की पश्चिम पर चर्चा करने लगे, बात पूछी थी सीए पे चर्चा करने लगे कहां पर। तो ये इनके पास एक आईटी और एक सीडी, इनकी जो डिपार्टमेंट है, इनको एक लिख के दे देता है कि आप केवल ये टारगेट एजेंडा चलाइए। देखिए, सीए जो इस वक्त लेके आए हैं 2024
कि चुनाव से पहले, लोकसभा की, देश की सबसे बड़ी पंचायत के पहुंचने से पहले, ये केवल मेन मुद्दों से डाइवर्ट कर मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों का दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए लेके आए। खाली 145 करोड़ लोगों में खाली 31,000 लोगों को ये नागरिकता का मुद्दा था। आपने 3 कंट्री क्यों रखी? मैं फिर कह रहा हूं, आज रिपीट कर रहा हूं, आप 57 मुस्लिम कंट्री हैं, हिंदू तो उन सारी कंट्रियों में भी रहते हैं, और क्रिश्चियन कंट्री है 196 कंट्री हैं। आप अमेंडमेंट कर देते, आप तो मास्टर हैं ऑपरेशन लोटस के थ्रू सरकार गिराने के, आप विधि विधान बदलने के। तो आप कहते हैं 196 कंट्रियों में जो हिंदू हैं वो सब हिंदुस्तान में आए, उनके लिए खोलेंगे। ये 3 ही कंट्री क्यों? पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। इसलिए कि इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम होता है, कब्रिस्तान शमशान होता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान होता है। इनका एजेंडा चुनाव लड़ना नहीं है, ये केवल लोगों में भ्रम पैदा कर और अपोजिशन। अब आपने निषाद जी से पूछा, आपने राजभर जी से पूछा, तो अजय जी ये बताइए कि अगर किसी हिंदू को कोई छुरा मार रहा है और कोई आदमी कहे कि भाई उस क्रिमिनल को पकड़ करके जेल में डाल दो और उस विक्टिम को जस्टिस दो, वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा होगा? इफ somebody is being attacked and you are giving him or her protection, that will be a Hindu Muslim agenda. पदमजा जी, बदमाश, हत्यारा और क्रिमिनल या विक्टिम्स होता है, उसमें भी आप बांटिए मत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी मत करिए उसको। वो बदमाश होता है, विक्टिम होता है, हत्यारा होता है, आतंकवादी होता है। अब तो इसीलिए बांटने की रणनीति, बांटने का काम भाजपा, उसका आईटी सेल, उसके ज्ञानी और उसके नामित प्रवक्ता और चिंटू पिंटू नेता पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी पर रोज कर रहे हैं। इनका आधार यह है कि अंग्रेजों ने देश बांटा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति करी। वो गोरे अंग्रेज कर रहे थे, अब देश में काले अंग्रेज यही काम कर रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट फेयर। चुनाव जीतने के लिए कहां तक गिरोगे? मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, व्यापार पे लड़िए, रोजगार पे लड़िए। कम से कम अपने देश के लोगों को काला तो मत बोलिए। लोगों के बिजनेस काले अंग्रेज इज अ वेरी रेसिस्ट थिंग टू से। लेट्स नॉट गो डाउन दैट रोड। छापे पड़ रहे हैं। हाँ सर, ये गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट लैंग्वेज। बट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट आई वांट टू आस्क यू अ सीरियस क्वेश्चन। क्या आपको सच में लगता है कि इन हिंदुओं को, इन रेफ्यूजीज को, इन रादर जो लोग यहाँ पर सिटीजनशिप मांग रहे हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध जो भी हैं, उनको सच में बीजेपी अपना वोटर बनाने के लिए लेके आ रही है ताकि 2029 में ये लोग सब उनके वोटर बन जाए? हो सकता है ये आपके वोटर बन जाए। नहीं। वो पाकिस्तान से आए और आपके वोटर बन जाए, उनको अजय वर्मा अच्छे लगे। पदमजा जी मुस्लिम क्यों नहीं इसमें? जब भारत का संविधान धर्म के आधार पर कहता ही नहीं है कि धर्म के आधार पर कुछ मत करिए, इसका मतलब आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। देशद्रोही काम कर रही है देश की सरकार। ये मैं नहीं कह रहा, 140 करोड़ लोग कह रहे हैं, ये सब संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये काम कर रहे हैं केवल अपना एजेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं। वोट से 145 करोड़ में 30-35 हजार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे ना, जो रस्सी के पीछे बहस बंदी हुई है, जो एनपीए और एनआरसी को लेके आने का टारगेट पूरे देश में खलबली मचाने का है, ये कनेक्ट उसी से है। ये तो एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देखना चाहते हैं कि रिएक्शन क्या है चुनाव से पहले। चलिए ठीक है, आई विल लीव इट एट दैट, but I still have to say it is very interesting to hear Uddhav Thackeray talking about Gomutravadi Hindutva. Was this unintentional, a slip of tongue, or a deliberate message? I leave that to your wisdom. Gentlemen, thanks very much for joining me. Quick break.